آج ہم تصوف سیکھنے بیٹھے ہیں اور تصوف کے بارے میں جو سب سے مشہور کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر موجود ایک ولی کی کرامات پڑھیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے، دیکھیں گے کہ کتنے پہنچے ہوئے ولی تھے۔ اور میں آپ کو پہلے یہ بات باور کرا دوں کہ بایزید بستامی سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف ان کی طرف منسوب واقعات کے اوپر جائزہ لیں گے کہ ان کی منسوب کیا ہوئے واقعات جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ تو یہ کتاب ہم نے آج منتخب کی ہے اپنے لیے، آج کے موضوع کے لیے، تذکرۃ الاولیاء، حضرت شیخ فرید الدین عطار کی شہرہ آفاق تصنیف، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے جو الفاروق بک فاؤنڈیشن سے چھپا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو پہلے بتا دوں آپ کو، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے آئی ہے، یہ کسی وہابی یا کسی اہل حدیث یا سعودی عرب سے چھپ کے نہیں آئی ہے، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپ کے آئی ہے۔ خیر، اس میں انہوں نے بہت سارے بزرگان دین کے نام دیے ہیں، جیسے سٹارٹ میں تذکرہ عطار، پھر امام جعفر صادق، اویس کرنی، حسن بصری، مالک بن دینار، محمد واسع، حبیب عجمی، ابو حازم مکی، عتبہ بن غلام، رابعہ بصری، فضیل بن ایاز، ابراہیم ادہم، بشر حافی، ذوالنون مصری، بایزید بستامی، عبداللہ ابن مبارک، سفیان ثوری، اور بہت سارے اولیاء اللہ اور تابعین اور تبع تابعین کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ خیر، اس کے اندر جن شخصیت کو ہم نے آج منتخب کیا ہے وہ ہیں جناب بایزید بستامی۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر، یعنی یہ 94 پیج پہ ہے اور 94 سے لے کر 120 تک، اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 26 صفحے بنتے ہیں، اور ان 26 صفحوں میں بہت سارے من گھڑت اور موزوں واقعات موجود ہیں جو کہ شریعت محمدیہ کے ہی خلاف ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اس کے اندر واقعہ ہے وہ ہے جناب جعفر صادق کی شاگردی کا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ یعنی بایزید بستامی جو تھے امام جعفر صادق کی خدمت میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ تو جناب امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا، میں نے تو آپ کے روبرو کبھی سر نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر نے فرمایا اب تو مکمل ہو چکے ہو، لہذا بستام جاؤ۔ تو اگر آپ ان دونوں کی ڈیٹ آف ڈیتھ اور ڈیٹ آف برتھ، یعنی کہ امام جعفر صادق کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے اس میں اور بایزید بستامی کی تاریخ پیدائش میں تقریباً 40 سال کا فرق ہے، یعنی سما بنتا ہی نہیں ہے، 40 سال کا فرق ہے۔ اور اس فرق کو انہوں نے یوں ختم کر دیا، انہوں نے کہا بھائی نہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد تھے تو تھے، اب بے شک وہ ان کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، پھر بھی شاگرد تھے جن سے انہوں نے بالمشافہ تعلیم حاصل کی ہے، فیس ٹو فیس۔ خیر، اگلی جو اس کے اندر واقعہ جو میں جس بارے میں بات کروں گا وہ ہوا یہ کہ آپ حج کرنے گئے۔ تو جب آپ حج کرنے گئے نا تو آپ مدینے نہیں گئے، ٹھیک ہے، آپ نے بس حج کیا اور حج کر کے واپس آئے اور کہا کہ مدینے کے لیے الگ موقع پر اسپیشل آؤں گا۔ تو چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو بہت سے افراد آپ کے ہمراہ ہو گئے، لیکن آپ نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ میں اکیلا جاؤں، یہ اتنے زیادہ لوگ میرے ساتھ نہ چلیں۔ اور ایک دن نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میری پرستش نہیں کرتے۔ یہ کفریہ کلمہ ہے، اور یہ کفریہ کلمہ انہوں نے کہا، اور لوگ یہ سن کر کہ آپ پاگل ہیں سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے۔ اب جس نے بھی یہ منسوب کیا، کیا وہ مجھے سمجھا سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ویسے ہی لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کہے کہ میں خدا ہوں تو کیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ یہ وہ خود بتائیں گے، ہم تو نہیں لگاتے کسی پہ فتویٰ۔ خیر، اگلا ہے کیفیت وجد۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حالت وجد میں آپ نے کہہ دیا سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے، ٹھیک۔ تو وہاں پہ لوگوں نے آپ کو اس بات کی تنقید کا نشانہ بنایا، تو آپ نے کہا کہ اگر آئندہ میرے منہ سے ایسا جملہ نکلے تو مجھے مار دینا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں جب آپ نے یہی کہا تو آپ کے مریدین نے آپ کو قتل کرنے کے لیے نیت سے اٹھے، تو پورے مکان میں ہر سمت بایزید ہی بایزید نظر آئے۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، ہر سمت بایزید بایزید نظر آئے۔ جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چلا رہے ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے ایک پوری کہانی کھڑی کی کہ بھائی وہ جو مرضی کے ہیں، وہ حالت وجد میں جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور وہ جائز ہوتا ہے۔ اس کی مزید تعویل کرتے ہوئے انہوں نے کہا جس طرح آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کا قد بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ سر آسمان سے ٹکراتا تھا۔ وہ میرے بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر جو تھا وہ آسمان سے یا عرش سے ٹکراتا تھا؟ تو لوگوں کو چونکہ اس ٹائم علم نہیں تھا اتنا کتابوں کا، تو جو ان کے منہ میں آیا وہ لکھتے گئے۔ اس کے بعد کیا جی، ایک واقعہ اور اس میں لکھا ہے
کہ ایک मरतबा आप सफर हज पर रवाना होकर चंद मंजिल पर पहुंचे थे कि वापस आ गए। हज करने गए लेकिन रास्ते में से वापस आ गए। तो जब लोगों ने पूछा कि हुजूर आप तो हज करने गए थे, वापस क्यों आ गए? तो कहते रास्ते में मुझे कपशी मिल गया था, तो उसने मुझे इसरार के साथ ये कहा कि खुदा को बिस्ताम में छोड़कर कहां जा रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है हज करने की, खुदा तो बिस्ताम में ही है। अब वल्लाह आलम उसका इशारा किस तरफ था, लेकिन खुदा को बिस्ताम में छोड़कर क्यों जाते, उसमें से कोई मंतक भी नहीं निकलती है। ये काफी नहीं था कि एक दफा आप हज करने जा रहे थे तो किसी ने रास्ते में रोका और पूछा जी कहाँ जा रहे हैं, तो आपने कहा कि मेरे पास मैं हज करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ रकम है, तो बाइज़ बुस्तामी ने कहा कि मेरे पास 200 दिनार है। तो उसने अर्ज की कि मैं मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, तो ये रकम मुझे दे दो और 7 मरतबा मेरा तवाफ करो, तुम्हारा हज हो जाएगा। अब एक जाहिल सा आदमी था, उस आदमी ने आगे बाइज़ बुस्तामी को ये बात की। अब होना तो ये चाहिए था कि खाली पैसे अगर देने थे तो खाली पैसे दे के घर चले जाते, या कहते कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं हज करने जा रहा हूँ। ये दो सूरतें थी, लेकिन उन्होंने उसकी तजवीज़ पे अमल किया और उसको पैसे दिए, उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए और अपना हज कर लिया। यानी एक आम बंदे के गिर्द 7 चक्कर लगा के उन्होंने हज अपना कर ली। तो अब मुझे कोई अहले इल्म ये बता दे कि भाई क्या ऐसा करने से, मतलब मैं अगर हज करने जा रहा हूँ तो रास्ते में मुझे कोई बंदा मिले कि मैं गरीब हूँ, तो मैं उसको पैसे दे के उसे के 7 चक्कर लगा के अपना हज करा सकता हूँ कि नहीं? बस मुझे ये पता करके बता दे। अच्छा जी, खाली बात यहाँ खत्म नहीं होती। हजरत जुल्नून मिस्री ने आपकी खिदमत में एक जाय नमाज इरसाल की, तो आपने ये कहकर वापस कर दी मुझे इसकी हाजत नहीं है, अलबत्ता एक मसनद की जरूरत है। यानी अब मैं ऐसा बेनियाज हो चुका हूं कि मुझे नमाज माफ हो चुकी है, जो नमाज अंबिया को माफ नहीं, जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन को माफ नहीं, जो अहले बैत अतहार को माफ नहीं, वो हजरत बाइज़ बुस्तामी को माफ है। उनके ऊपर नमाज माफ है, उनको नमाज की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अगला वाकया, क्या तुम्हारे पास एक बंदा आया और कि आपकी जो तालीम है, मैं इतने अरसे से आपके पास हूं लेकिन आपकी तालीम का मुझ पर असर नहीं हो रहा। तो आपने फरमाया कि तेरे ऊपर असर ना एक ही सूरत में हो सकता है, अगर तू मेरे कहे की बात मान ले तो उसने कहा जी जरूर बताएं क्या करूं। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि आप अपनी ना दाढ़ी, सुन्नत रसूल जो है, दाढ़ी, मूंछ, सर के बाल मुंडा कर एक कंबल ओढ़कर एक थैले में अखरोट भर लो और ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां बहुत से लोग तुम्हें जानते हो और बच्चों से कहो कि वो तुम्हें थप्पड़ मारे। मुझे बताएं ये कौन सा नफ्स है, ऐसा कौन सा नफ्स मरता है जो दाढ़ी कटाने से नफ्स मरेगा? दाढ़ी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काट देने के बाद इंसान के अंदर का नफ्स मरता है। कौन सा दीन है जिसमें दाढ़ी काट देने से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएंगे, सुन्नत रसूल से मुंह मोड़ कर रसूल के करीब हो जाएंगे, सुन्नत रसूल से मुंह फेर कर अल्लाह के करीब हो जाएंगे? अल्लाह वल्लाह आलम, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं उनकी। खैर, अगला वाकया, कहते हैं शफीक बल्खी का एक इरादतमंद या मुरीद सफर हज पर रवाना होते हुए बा यजीद के यहाँ शर्फ न्याज के लिए हाजिर हुआ। तो आपने पूछा कि किससे बैत हो, और जब उसने अपने मुर्शिद का नाम बताया यानी शफीक बल्खी, तो फरमाया कि तुम्हारे मुर्शिद के अकवाल और अमाल क्या हैं, यानी वो क्या करते हैं? तो उसने अर्ज की उनका अमल तो यह है कि मखलूक से बिल्कुल बेनियाज हैं, मुतवक्कल अल्लाह हो गए हैं, यानी अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करते हैं। और कौल ये है कि अगर बारिश ना होने से, समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पे उनके मुरीद ने बात की कि कौल ये है कि अगर बारिश ना होने से गल्ला पैदा ना हो और पूरी मखलूक मेरी अयाल में दाखिल हो, जब भी मैं तवक्कुल तर्क नहीं कर सकता। तो उन्होंने समझाया कि वो फरमाते हैं कि अगर बारिश ना हो और गल्ला पैदा ना हो तो तब भी मैं तवक्कुल नहीं छोड़ता, अल्लाह पे तवक्कुल ही करता हूँ। तो ये सुनकर भाई यजीद ने फरमाया वो बड़ा काफिर और मुशरक है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी जो अल्लाह पर तवक्कुल की बात कर रहा है, जो अल्लाह पर भरोसे की बात कर रहा है, वो जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल की बात कर रहा है, उसको बायजीद बुस्तामी ने काफिर और मुशरिक होने का फतवा दिया। आज हम बात करेंगे तो कहेंगे जी देखो तुम कौन होते हो, यानी एक बंदा तौहीद की बात करे तो वो मुशरिक है, एक बंदा तौहीद की बात करे तो वो उसके ऊपर आप इल्जाम लगा दो, जैसे आजकल भी होता है। आप तौहीद की बात करें वाबी, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करें तो आप बरेलवी, आप अहले बैत की मोहब्बत करें तो बात करें तो आप शिया हैं। तो उसी तरह फतवे इनके बुजुर्ग भी लगाया करते थे। खैर, आगे काम थोड़ा सा इंटेंस होने लगा है। दीदार, किसी बुजुर्ग ने मुराकबे के बाद सवाल किया कि उस वक्त आप कहाँ थे, यानी मुराकबे के दौरान आप कहाँ थे? तो फरमाया मैं बारगाह खुदाबंदी में, उस वक्त बारगाह खुदाबंदी में था। तो उन्होंने कहा, जो वो बुजुर्ग थे दूसरे, उन्होंने कहा मैं भी तो उधर ही था लेकिन मैंने आपको देखा नहीं। तो आपने फरमाया तेरे और अल्लाह के माबेन एक हिजाब था, मैं अल्लाह के सामने बैठा हुआ था,
इसी वजह से तुमने मुझे नहीं देखा। जैसे तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, तो हिजाब था, मैं हिजाब के उस तरफ अल्लाह के बिल्कुल सामने बगैर हिजाब के बैठा हूँ। वल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खैर, ये बात बहुत ज्यादा इंटेंस है। कहते हैं कि 30 साल तक अल्लाह मेरा आईना था, लेकिन अब मैं खुद आईना बन गया, इसलिए कि मैंने उसकी याद में खुद को भी इस तरह फरामोश कर दिया कि अब अल्लाह मेरी जुबान बन चुका है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी मेरी जुबान से निकलने वाले कलामात, जो बातें मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये असल में जुबान खुदाबंदी से अदा हो रहे हैं और मेरा वजूद बीच में से खत्म हो चुका है। ये हुलूलिया का अकीदा है, ये हुलूलिया का अकीदा है कि अल्लाह जो है वो खालिक कायनात जो है वो इंसान के अंदर हुलूल कर जाता है। ये हुलूलिया का अकीदा इन्होंने यहाँ पर एक दफा फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन की है। खैर, अर्श की हकीकत के मुतालिक एक शख्स आपके पास आया तो उसने कहा कि हुजूर, अर्श क्या है? तो बाज़ बुस्तामी कहते हैं अर्श मैं हूं। नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर कुर्सी के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कुर्सी भी मैं हूं। फिर कलम के बारे में पूछा तो आपने यही फरमाया कि मैं हूं। इसके बाद साहिल ने अल्लाह ताला के तो और भी बहुत से नेक बंदे हैं, मतलब आप अपनी तरफ इशारे करते हैं कि अर्श भी मैं हूं, कुर्सी भी मैं हूं, कलम भी मैं हूं, ठीक है। तो इब्राहिम, मूसा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, तो ये चीजें ये क्यों नहीं है? तो इस बार आपने भी फिर यही फरमाया कि वो भी मैं हूं। वल्लाहु अकबर। यानी इब्राहिम भी मैं हूं, मूसा भी मैं हूं, मोहम्मद भी मैं हूं। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब मुझे बताएं, कादियानियों की किताब है जी रूहानी खजाइन, ठीक है जी, उसमें ना उन्होंने जो है क्या नाम है उसका, कादियानी जो है उसने लिखा था कि जहां पर कुरान में रसूलुल्लाह आता है, ठीक है, उससे मैं मुराद हूं। यहां पर बाजिद बुस्तामी कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद हूं। अब मुझे आप ये बताएं क्या फर्क है इनमें और उनमें? खैर, फिर साहिल ने मलाइका के लिए पूछा तो आपने फरमाया वो भी मैं, मतलब जो वो पूछ रहा था वो आगे से कह रहे थे मैं हूं। अर्श भी मैं, कुर्सी भी मैं, कलम भी मैं, इब्राहिम, मूसा, मोहम्मद भी मैं, फरिश्ता भी मैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। झूठ और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे इस किताब में लिखे। वैसे तो इस किताब से बहुत से वाकयात काफी लोग वीडियोस बना के कर चुके हैं, लेकिन ये वो वाकयात है जिन्हें हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है, और इस बार हमने ये इन वाकयात को हाईलाइट करके आपको दिया है, और इनके हवाले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट का हामी है तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो से पहले पहले इसके स्क्रीनशॉट भी एक एल्बम की सूरत में अपलोड कर देंगे, और ये स्क्रीनशॉट आप आगे शेयर कर सकते हैं। और आखिर में बाजिद बुस्तामी की मेराज की कैफियत, ये बहुत लंबा वाकया, बहुत कहानियां इसके अंदर, बहुत झूठ, बहुत खुराफात लिखी हुई है, मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, बहुत से लोग पढ़ के सुना चुके हुए। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे सुने तो फेसबुक पे शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस किताब की हकीकत पहुंचाएं कि इस किताब में कितने बड़े बड़े झूठ बाजिद बुस्तामी की तरफ मंसूब किए हुए हैं, और इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हैं। तो अगर मैं गलती पर हूं तो आप इस्लाह फरमाइए और इनकी सही मानों में तावील पेश कीजिए जो मुझे समझ नहीं आई है, और अगर ये आपकी किताब नहीं है तो फिर बताइए कि ये आपकी किताब नहीं है सरेआम। खैर, तो आपका हमारा साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।